Hi everyone, I welcome you all to my channel Regalia, and today I will be beginning with a new series on plant genetics, and our today's topic is history of genetics. But before I begin with the topic, guys, subscribe the channel for if you want more such videos. So now, without wasting much of your time, let's begin the video. So, as you can see, our topic is history of genetics, and but before diving into what is the history and what are the contributions of various scientists, we'll first see some basic definitions. As you can see, the first definition is of genetics. Genetics is a pretty easy one definition. It is defined as a science that deals with the structure and organization, transmission, and function of genes. Okay, so it basically deals with the structure, organization, and how the genes are transmitted, what are their functions, how do they originate, and how do the variation in them actually originate. So the second one is cytogenetics. So cytogenetics is the study of various aspects of chromosomes and their effect on the development of character of organisms. So basically, cytogenetics is the study of chromosomes. Okay, in short, if you want to learn, it is the study of chromosomes and all other things related to particular chromosomes. And cytology is the study of structure and functional organization of structures within a cell, the cell organelles like chloroplast, mitochondria. So the basic difference between cytogenetics and cytology is that cytogenetics deals with the study of chromosomes, while cytology it basically deals with the structure and functional aspects of the cell. What are the structures present within a cell? Now we'll see the scientists and their contribution. Okay, scientists, scientists and their contribution. So the first scientist that we'll see is De Graaf. So De Graaf discovered follicles of human ovary. Okay. Second is Leeuwenhoek. And guys, before I continue, I would like to tell you that I haven't mentioned the dates of the contribution. Means I have mentioned the dates, some of the dates that are only important for the exam point of view. So you will find only some of the dates uh, written in front of the scientists. So the first one is De Graaf, and he discovered follicles of human ovary. Second is Leeuwenhoek, and he noted that in sexual reproduction, sperms become associated with egg. Okay. O. Hertwig, he gave the conclusive proof, means the unequivocal proof. It was the final proof that for fusion of sperms, he gave the conclusive proof for fusion of sperms and eggs in case of sea urchin. So they ask sometimes that who gave the conclusive proof and in which organism. So it is sea urchin. And Grew, he described stamens. Okay, so he described stamens in flower, and Camerarius he discovered sex in plants, and the plant was maize. So it is commonly asked who discovered sex in plants. So it is Camerarius. But if in exam they ask that in what plant did he discover, so it will be maize. Okay. So now coming to the next scientist, it's Amici. So Amici he discovered the process of fertilization. Okay, Amici he discovered the process of fertilization in plants. Process of fertilization in plants, that is, he described the entry of pollen tube into ovary. So he described the process through which the pollen tubes would enter into the ovary. Now the next scientist is Stratzberger. Stratzberger he noted the fusion of eggs and sperm nuclei in plant, and so he noted in plant. In case of plant, it was Stratzberger. वुल्फ ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस. नाउ जो एपिजेनेसिस की जो थ्योरी थी, एपिजेनेसिस की थ्योरी बेसिकली क्यों आई थी? वो आई थी प्री फॉर्मेशन की थ्योरी को काउंटर करने के लिए आई थी. सो हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस था प्री फॉर्मेशन वर्सेस एपिजेनेसिस का. ये छोटा सा एक चार्ट है, तो इसमें देख लो जैसे प्री फॉर्मेशन क्या होता है. तो प्री फॉर्मेशन है कि द ऑर्गेनिज्म इज प्री फॉर्म्ड एज अ कंप्लीट मिनिएचर स्ट्रक्चर इन द स्पर्म और द एग, एंड ही सिंपली ग्रोज लार्जर एज इट डेवलप्स. तो इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पहले से ही कम्प्लीटली डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मिनिएचर फॉर्म में,
और एज एंड व्हेन जब ह्यूमंस ग्रो करते हैं अपनी जब रिप्रोडक्टिव साइकिल के थ्रू, तो उसमें बस ही ग्रो करता है, इसमें ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं होता है उसके अंदर। लेकिन एपिजेनेसिस ने कहा ऐसा नहीं होता है। एपिजेनेसिस ने क्या कहा कि द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स इन अ स्टेप वाइज फैशन फ्रॉम एन अनऑर्गेनाइज। तो एपिजेनेसिस ने कहा कि एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर जैसे एग होता है या फिर स्पर्म होता है, और जब वो फ्यूजन होने के बाद वो एक अनऑर्गेनाइज स्टेट में होता है, वहीं से वो डेवलप करता है ऑर्गेनिज्म में। ऐसा नहीं होता कि पहले से ही ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होता है। वॉन बेयर ही रिफाइंड द एपिजेनेसिस एंड सेड दैट वॉन बेयर he refined the epigenesis theory and he said that adult tissue is developed by differentiation of embryonic tissue। तो इन्होंने थोड़ा और इसको स्पेसिफिकली ये बोल दिया कि एक टिश्यू होता है जिसे हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहते हैं, और एम्ब्रियोनिक टिश्यू से बनता है अडल्ट टिश्यू। ठीक है, फिर अगले आए लामार्क। लामार्क ने क्या किया, ही गेव द लामार्किज्म। ओके, लामार्क गेव दी लामार्किज्म और द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लामार्क के हिसाब से ये था कि कैरेक्टर जो होता है वो प्रोजेनी अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक स्मिथ है कोई, तो ब्लैक स्मिथ की जो प्रोजेनी होगी वो भी ब्लैक स्मिथ होगी। ठीक है, मतलब उसकी भी स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी एंड उसके अंदर भी वही फीचर्स आएंगे। इस थ्योरी को डार्विन, इस थ्योरी को आगे जो है अभी से एक साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था, वो हम देखेंगे आगे। द नेक्स्ट हम जो साइंटिस्ट पढ़ेंगे वो है डार्विन। तो द डार्विन ही गेव द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। तो डार्विन ने काफ़ी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, फिर इनकी जो बुक थी, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे लिखी थी, कैसे स्पीशीज़ का ओरिजिनेट होता है। और फिर तीसरी जो इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो हम पढ़ते हैं जब हम एवोल्यूशन के चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो उसमें आपको मिलता है कि थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो वो डार्विन ने दिया था। कि डार्विन ने एक्चुअली रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी कि जो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है उतना ही ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म फिट होता है। अगले आए थे वीजमैन। वीजमैन ने 1883 में ही प्रपोज द जर्म प्लाज्म थ्योरी, और इनके हिसाब से ऑगस्ट वीजमैन जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने प्रपोज की थी जर्म प्लाज्म की थ्योरी। इन्होंने कहा था कि बॉडी जो है, किसी भी बॉडी जो है वो दो टाइप के जर्म प्लाज्म से कंपोज होती है। इसमें दो प्लाज्मा होते हैं, एक होता है जर्म प्लाज्मा, ठीक है, जो कि आपकी जर्म सेल्स में होता है, दूसरा होता है सोमैटोप्लाज्मा। उसी तरीके से फिर आए कॉल रूटर। कॉल रूटर ने 7 ईयर्स टोबैको के प्लांट पे काम किया। उन्होंने ही मेड एक्सटेंसिव प्रोसेस इन निकोशियाना, ही ऑब्जर्व्ड हेट्रोसिस इन F1। हेट्रोसिस क्या हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। इन F1 एंड वेरिएशंस देखे उन्होंने F2 जनरेशन में। F1 F2 भी हम आगे आके देखेंगे। बस अभी इतना याद कर लो कि इन्होंने निकोशियाना टोबैकम पे काम किया था और हेट्रोसिस इन्होंने फाइंड की थी। ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स मेड इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोजेनी। और इन्होंने ये भी बताया कि जो मेल और फीमेल पेरेंट होता है वो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। मेंडल तो जैसे आप सब जानते हैं, ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही गेव द लॉज रिलेटेड टू हेरिडिटी। इन्होंने लॉज दी थी, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था इन्होंने, और लॉ ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ गैमीट्स करके प्योरिटी ऑफ गैमीट्स इन्होंने दिया था। तो ऐसे ही लॉज मेंडल साहब ने दिए थे। कॉरेंज, डिवरीज एंड शमाक, इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल को इंडिपेंडेंटली, अलग अलग कंट्रीज़ में थे ये, और इन्होंने मेंडल के काम को वापस से रीडिस्कवर। जैनसन एंड Z. Janssen and H. Janssen the first time constructed a properly working compound microscope। तो सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैनसन एंड जैनसन किया था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक ने। ड्यूट्रोशेट ही कंक्लूडेड दैट ऑल बायोलॉजिकल टिश्यूज़ आर, इन्होंने क्या कंक्लूड किया था ड्यूट्रोशेट ने कि देखो जैनसन और कॉरेंज तो पढ़ लिया हमने। ड्यूट्रोशेट ही कंक्लूडेड दैट all biological tissues are composed of cell and that these cells are attached with each other due to some adhesive compounds। ओके, तो उन्होंने कहा था कि जितने बायोलॉजिकल टिश्यूज़ हैं ना वो सेल से मिलके बने, और ये सेल अब अगर ये टिश्यू बना रहे हैं तो सीमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो अधेसिव नेचर होता है, कोई ऐसा कोई कंपाउंड है जिनको बाइंड करके रखता है। स्क्लीडन ही कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, स्क्वान कंक्लूडेड दैट ऑल एनिमल टिश्यूज़, तो इंपॉर्टेंट है कि स्क्लीडन ने, मैथियास स्क्लीडन, इन्होंने प्लांट्स पे काम किया था, और थियोडोर श्वान इन्होंने काम किया था आपका एनिमल्स पे। ओके, सेल थ्योरी की जो बेसिस थी। अब देखो, जो एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1989। ये बहुत क्वेश्चन आता है।
ओके, तो सेल थ्योरी कब आई थी? इन दी ईयर 1839। नगेली ने फिर अगले अगले जो साइंटिस्ट हैं वो नगेली हैं। नगेली ने पोस्टलेट किया ऑल सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती है वो डिवाइड करके वो नए सेल बनाती हैं। विर्को इलेबोरेटेड द वर्जन ऑफ सेल थ्योरी, और इन्होंने विर्को ने सेल लीनिएज थ्योरी दी थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये आप इसको याद कर लेना कि सेल लीनिएज थ्योरी वाज गिवन बाय विर्को। लीवेनहॉक वाज द फर्स्ट to observe the nucleus of RBC. He was the first person to observe the nucleus of an RBC. Leeuwenhoek. Robert Brown, he discovered nucleus. बहुत कन्फ्यूजन होता है रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ब्राउन में, तो आप याद रखना रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस एंड रॉबर्ट हुक आपका सेल, कॉक सेल्स उन्होंने जो डिस्कवर किए थे। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड इन द सेल्स ऑफ ट्रेडिस्कैंशिया। ओके, मिशर डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम टिश्यूज़। न्यूक्लियाई को कैसे आइसोलेट करते हैं टिश्यूज़ से, वो मिशर साहब ने, आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लियाई, ये मिशर साहब ने किया था। ओके, ऑल्टमैन ही रीनेम्ड न्यूक्लिन एज न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का नाम ऑल्टमैन ने दिया था। फ्लेमिंग ही प्रपोज द टर्म माइटोसिस, इंपॉर्टेंट है। ही डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ही ऑल्सो कॉइंड द टर्म क्रोमैटिन। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, टर्म माइटोसिस, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एंड टर्म क्रोमैटिन, फ्लेमिंग ने। फार्मर एंड मूर मियोसिस, ओके, फार्मर एंड मूर मियोसिस। वॉल्डेयर ही फर्स्ट टाइम यूज द टर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम टर्म वॉल्डेयर ने यूज़ किया था, लेकिन क्रोमोसोम डिस्कवर स्ट्राट्स बर्जर ने किया था। एग्जाम में आ सकता है कि कभी कभी कि नाम किसने दिया था, तो इट वॉज वॉल्डेयर। एंड द ईयर इज इंपॉर्टेंट 1888। सटन एंड बोवेरी ईयर इज इंपॉर्टेंट 1902। जॉइंटली प्रपोज द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत पूछते हैं, सटन एंड बोवेरी ने दी थी। ओके, अगला आता है बेटसन। बेटसन ने ही इंट्रोड्यूस द टर्म जेनेटिक्स, तो बेटसन ने टर्म दिया था जेनेटिक्स। हेट्रोजाइगोट, F1 F2, F1 टर्म, F2 टर्म, होमोजाइगोट, एलिलोमॉर्फ, एपिस्टैटिक, तो ये टर्म दिए थे सब। जैसे जेनेटिक्स हो गया, हेट्रोजाइगोट दिया था, होमोजाइगोट दिया था, F1 दिया था, F2 दिया था, और एलिलोमॉर्फ। बेटसन एंड पनेट ही ऑब्जर्व द लिंकेज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले लिंकेज बेटसन एंड पनेट ने ऑब्जर्व की थी स्वीट पी में, लथायरस में। जोहानसन 1909 में ही यूज द टर्म जीन, जीनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप टर्म जोहानसन ने यूज़ किए थे। ही प्रपोज द प्योर लाइन थ्योरी इन द प्रिंसेस वैरायटी ऑफ राजमा, राजमा के प्रिंसेस वैरायटी में, ये बहुत पूछते हैं कि कौन सी वैरायटी में, तो प्रिंसेस वैरायटी ऑफ राजमा में इन्होंने प्रूव किया था जोहानसन ने। यूल ही गेव द आइडिया ऑफ मल्टीपल फैक्टर, यूल ने क्या किया था, ही गेव द आइडिया ऑफ मल्टीपल फैक्टर टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ क्वान्टिटेटिव और मेट्रिक कैरेक्टर्स। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को बताने के लिए यूल ने एक आइडिया दिया था, जिसको यूल ने कहा था मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस थी जो यूल ने दी थी 1906 में। ओके, नेल्सन एंड एहल ने इसको फिर आगे प्रूव किया। नेल्सन एंड एहल ने डिमॉन्स्ट्रेट किया एग्जिस्टेंस को कि ऐसा होता है, किसमें, वीट्स एंड ओट्स में। यूल ने सिर्फ एक आइडिया दिया था, इसको प्रूव किया नेल्सन एंड एहल ने आगे 1909 में। फिर मॉर्गन आए 1910 में, इन्होंने एक्सप्लेन किया इनहेरिटेंस ऑफ वाइट आई जीन। ओके, वाइट आई जीन जो था वो इनहेरिटेंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये जब इन्होंने एक्सप्लेन किया तो उस समय इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया सेक्स लिंकेज को, कि एक्स लिंक मतलब एक्स क्रोमोसोम में कुछ कैरेक्टर्स लिंक थे और वही थ्रू एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो ये बताया था मॉर्गन ने, एंड ही वाज आल्सो अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट इन द ईयर 1933। मुलर एग्जिबिटेड द म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ एक्स रेज, म्यूटाजेनिक एक्स रेज ड्रोसोफिला में किसने, म्यूलर साहब ने एक्सप्लेन किया था। स्टैडलर ने भी म्यूटेशन को एक्सप्लेन किया, एक्स रेज और गामा रेज को, लेकिन उन्होंने बार्ले और मेज में एक्सप्लेन किया था स्टैडलर ने। ओके, तो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने किया, आपका बार्ले और मेज में किया, तो स्टैडलर। और सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया वो मुलर थे, तो गैरॉड ही पब्लिश द बुक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, पूछ लेते हैं एग्जाम में, बुक का नाम आ जाता है आर्चीबाल्ड गैरॉड। ओके, नाउ द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज बीडल एंड टॉटम। बीडल एंड टॉटम ने स्टडी किया था बायोकेमिकल म्यूटेंट्स ऑफ कॉमन ब्रेड मोल न्यूरोस्पोरा, एंड ही प्रपोज द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। एवरी मैक्लियर्ड एंड मैककार्टी ही डिमॉन्स्ट्रेटेड डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। एवरी मैक्लियर्ड एंड मैककार्टी ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल पर एक्सप्लेन किया था, और इनके विल्किंस के साथ, विल्किंस ने एक्चुअली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक के थ्रू एक डीएनए का मॉडल समझाया था, जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया था। मैकक्लिंटॉक ने प्रपोज किया था जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट,
और जिसको ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं, ट्रांसपोजिबल एलिमेंट भी कहते हैं, मेज में प्रूव किया था मैकक्लिंटॉक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरनबर्ग began to decipher the genetic code and he was the first person to demonstrate that 3 uracils, मतलब 3 यू अगर एक mRNA में हो तो वो एक फिलाइन एलेनिन के लिए कोड करते हैं। यू यूजुअली कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज जेकब एंड मोनार्ड, ही प्रपोज द ऑपरॉन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन ऑपरॉन। तो जीन ऑपरॉन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेकब एंड मोनार्ड ने दिया था। बेंजर ने R2 लोकस की स्टडी की थी T4 बैक्टीरियोफेज में, एंड इन्होंने सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रेकॉन, इन्होंने इसको प्रूफ किया था। ये आपका JRF 2000, ये क्वेश्चन आपका JRF में आ चुका है 2019 में। ओके, तो क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रेकॉन। ओक्वा ने क्या किया था? इन विट्रो RNA की सिंथेसिस की थी, ये आ जाता है। और कॉर्नबर्ग ने DNA की सिंथेसिस की थी इन विट्रो। ओके, द नेक्स्ट इज खुराना एटॉल ने क्या किया था? ही सिंथेसाइज द इन विट्रो नोन जीन कोडिंग फॉर एलेनाइल ट्रांसफर RNA फ्रॉम ईस्ट। तो एलेनाइल ट्रांसफर RNA को कोड करने वाले जीन को इन्होंने सिंथेसाइज किया था। ओके, स्मिथ, नेथन एंड आर्बर, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी इन द ईयर 1970, क्वेश्चन आ जाता है। स्मिथ, नेथन एंड आर्बर। पॉल बर्ग, इन्होंने गिलबर्ट एंड सैंगर के साथ मिलकर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था, पॉल बर्ग ने। सो आज के लिए यही था। हमने हमने एक ब्रीफ अकाउंट देख लिया हिस्ट्री का। ओके, सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो मैच द कॉलम में ही बनते हैं। असर्शनिज्म में तो ऐसा आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है। और डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स नहीं पूछी जाती हैं। डेट्स अगर आएंगी तो जो इंपॉर्टेंट डेट थी मैंने मेंशन कर दी है। ओके, सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।